پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ حملے ہوں، نجی اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے، اس کے بعد دوبارہ وہ وزیر اعظم تھے، ان کو ہٹایا گیا، یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا، بہت کچھ ہوا یہاں، اور ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو یہ رد عمل قومی املاک کو نقصان پہنچانا، اور ایک ہی ادارہ ہے، اس ادارے سے ہم نے بھی اختلاف کیا ہے، ہم نے بھی جو شخص عمران کو لانے میں کردار ادا کیا، ہم نے بھی اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم نے کبھی اداروں پر حملے نہیں کیے۔ ہم نے آزادی مارچ کیا یہاں اسلام آباد میں، 15 سے 17 لاکھ لوگ 15 دن تک بیٹھے رہے، اسلام آباد میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کسی دکان کا نقصان نہیں ہوا، ہمارے قافلے کراچی سے چلے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، ٹریفک بھی چلتی رہی اور قافلہ بھی چلتا رہا، کہیں مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ آج ایک گرفتاری پر پورے ملک میں اتنا رد عمل سمجھ سے بالاتر ہے۔ ویسے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی، ان کو حکومت تشت میں ملی، انہوں نے ایسی جدوجہد کی جس میں انہوں نے کوڑے کھائے ہوں، جیلیں کاٹی ہوں، پھانسیوں کی سزائیں ہوں، عمر قید کی سزائیں ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جیل نہیں جا سکتا، سیاستدان کوڑے نہیں کھا سکتا، سیاستدان کو پھانسی نہیں لگ سکتی۔ ان احمقوں کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ کس نے یہ تربیت کی ہے؟ سیاست کا معنی جیل بھی ہے، سیاست کا معنی کوڑے بھی ہے، سیاست کا معنی پھانسی بھی ہے، سیاست کا معنی قید مشقت بھی ہے۔ انہوں نے جیل نہیں دیکھا، 2 دن کے لیے جیل گئے تو کسی نے رو کے کہا کہ مجھے بواسیر ہو گئی ہے، کسی نے رو کے کہا کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی۔ یہ ہے پی ٹی آئی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ عمران کوئی سیاسی شخصیت ہے، نہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے، دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے، دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے جو دہشت گردی سے اپنی ہر بات بنوانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دہشت گردی سے چیف جسٹس خائف ہے۔ اب چیف جسٹس اس قدر جانبداری، پاکستان کی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں، کل جو ضمانتیں ہوئی ہیں لاڈلے کی، اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو اس لیے بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود کہ چیف جسٹس کی اس پوسٹ پر بیٹھے شخص کو انصاف کرنا چاہیے،
इंसाफ करें, मुल्क की नाजुक हालात को देखें, मुल्क की मईशत को देखें, बेरोजगारी को देखें, महंगाई को देखें और इन हालात को देखकर उसकी रोशनी में फैसले करें। ये हठधर्मी और जिद और इनाद ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जमहूरियत की इस्तेकाम के लिए, जमहूरी इदारों के बहाली के लिए, आइन की पासदारी के लिए मार्शल लॉ का मुकाबला किया है। वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, याया खान का मार्शल लॉ हो, और अब भी करेंगे। अगर कोई शख्स जिसका ताल्लुक अदलिया से हो, अगर वो जबर पर उतर आएंगे, अगर वो जमहूरियत का गला घोंटने के लिए कमर बस्ता होगा, तो हम बे कमर बस्ता हैं और ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद करेंगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैं इस इलाके का जायजा लेने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि हमारा पड़ाव इंशाअल्लाह इस एरिया में होगा और देखेंगे जज साहब अगर तशरीफ लाएंगे। अब इंतहाई शर्म की बात है, शर्म की बात है, कम से कम एक बात होती है कि एक मुजरिम आया है, मुजरिम के साथ उसी तरह का सलूक होना चाहिए। अगर ना भी हो तो ये क्या बात है कि आपके आने से बड़ी खुशी हुई, दिल खुश हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम उस अदालत की कुर्सी पे बैठ के इस तरह फरीक बनते हो। तो फिर हमने भी कसम खाई है कि इस अदालत की तकद्दुस को, आइन की पासदारी को, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को हर हाल में बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। और हमने पहले भी जद्दोजहद की है, अब इस जद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। मजीद की तरफ दावत दे रहे हैं जी, फरमाइए। आपका जो प्रोटेस्ट है क्या ये सिर्फ सवार की हद तक ही है या ये आगे भी बढ़ेगा, या बगैर के इस्तीफे तक रहेगा? देखें, फिलहाल तो जो हमारा धरना है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है और जाहिर है कि मेरे इस कहने के पीछे बहुत सारे सवालात भी हैं, मकासद भी हैं। तो इसलिए आज मैं ये नहीं कह सकता कि हम कितने दिन यहाँ धरने पे बैठेंगे, लेकिन जाहिर है कि जब तक वो मकासद हासिल नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे और बताएंगे कि जो बेराहरवी, जो यकतरफा फैसले, जो फरीक बन के कुल्हाड़ा चला रहे हैं, हथौड़ा चला रहे हैं, इसका रास्ता रोकना है। मुतालिबा तो बड़ा वाज़ेह है, मुतालिबा बड़ा वाज़ेह है। मौलाना साहब, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज है, इस्लामाबाद में भी है। तो जिस तरह से पीटीए के साथ निपटा गया, जो इदारे हैं इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद पुलिस है, रेंजर्स है, पाक आर्मी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो आप उस सूरत हाल को किस तरह से टैकल करेंगे? क्योंकि आप भी इस वक्त हुकूमत के फरीक हैं, उस हुकूमत का एक हिस्सा भी हैं, तो क्या कानून के खिलाफ जाके वो काम करेंगे या फिर दफ़ा 144 को उठा लिया जाएगा? देखिए, इसी दफ़ा 44 के होते हुए पीटीआई ने जो हड़बोंग की, जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मनमानियां की और अस्करी इदारों पे हमले किए, हम नहीं करेंगे।
हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। तो अगर दफ़ा 144 उनके लिए हरकत में नहीं आता तो फिर पुरअमन लोगों के लिए क्यों हरकत में? सर कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग लाएंगे आप सारी पार्टी? वो आप परसों देखेंगे इंशाल्लाह। जमीयत ने अपने कारकुनों से अपील की है, ग्वादर से लेकर चतराल तक, गिलगित तक, कराची और लाहौर, जहाँ जहाँ हमारे कारकुन हैं इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह पीडीएम से वाबस्ता जो जमातें हैं उनके कारकुन पहुँचेंगे और इंशाल्लाह यहाँ भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा हो। मौलाना साहब ये बताइए कि आप जब आप आ रहे थे, वो हुकूमत ले रहे थे, तो उस वक्त हालात आप कह रहे थे कि हम बेहतर करेंगे, अब हालात मजीद ख़राब है, डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, महंगाई, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो टारगेट है वो आवाम नहीं अपने मकासद के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, हमें ये सारा कुछ वर्षे में मिला। इमरान ने मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया, पूरी मईशत की इमारत को गिरा दिया था। ये सामने बिल्डिंग है, आजकल की टेक्नोलॉजी में ये 1 घंटे में गिर सकता है, लेकिन जब इसको आप बनाएंगे तो आपको वक्त लगेगा। मईशत को उसने ज़मीन बोस कर दिया, अब उस मईशत को उठाना, महंगाई को ब्रेक करना, इसके लिए वक्त दरकार है। और जिन आलमी मालियाती इदारों से उन्होंने मुआहदे किए थे और उन्होंने सारा कुछ हमारी मईशत को डुबो दिया। जी मौलाना साहब, 2019 में भी आप लोगों ने धरना किया, लेकिन उस धरने का अंजाम जो है वो मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क वापसी पर वो ख़त्म हुआ। तो क्या इस बार जो आप यहाँ पे धरना देने के लिए आ रहे हैं, क्या मकासद कुछ और हो और उसके बाद डील के नतीजे में उसका कुछ और अंजाम निकले? अच्छा, एक और सवाल इसी के साथ ले लें, क्या जिस तरह सवालात आप उठा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, तो क्या आप इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं या करेंगे? भाई, इन हालात में तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। ये जो उसने माहौल बनाया है और उस पर जो रद्द अमल आ रहा है, पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। तो अगर थोड़ी सी भी कोई एहसास है और एक सामने एक चीज़ जो देखने में आती है, अगर ये उन्हें एहसास होता तो अब तक वो घर चला जा चुका। खुद जराइम की दावत दे रहे हैं। मौलाना साहब एक ये सवाल भी ले लें कि बजाय इसके कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी करें, तो इलेक्शंस में क्यों नहीं जाते, क्या मसला है? यही तो कह रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं इलेक्शन इतना जल्दी नहीं करवा सकता, मालियाती हमारा जो इदारा है वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दिफाई इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इसको संभालने के लिए अभी तैयारी नहीं है। तो इलेक्शन आज होंगे या कल होंगे, इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन से कभी हमने फिरार इख्तियार नहीं किया, और कल भी जाएंगे तो इंशाल्लाह धड़ल्ले से जाएंगे, लेकिन इलेक्शन तक तो जाने दे। पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश हो रही है। मैं नहीं समझता कि ये हुब्बुल वतनी है, ये मुल्क से मोहब्बत है या मुल्क दुश्मनी है। बहुत शुक्रिया जी। भाई